بتائیں شہریولیا کے باسی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ملتان شہر کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث صحت کے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شکیل سلطان۔ جی بالکل، اگر بات کریں ملتان شہر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال کی تو وہ انتہائی ابتر نظر آتی ہے۔ شہر کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہیں اور وہاں کے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آلودہ پانی پینے کی وجہ صحت کے بھی کئی مسائل ہیں۔ قریباً شہر کے 80 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہیں، لیکن میں اس وقت موجود ہوں چاہ مورت روڈ پر، الجلان روڈ ہے، جہاں کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ بند اور پانی کے کیا مسائل آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ تقریباً کافی عرصے سے بند پڑا ہے، کافی عرصے سے بند ہے۔ جہاں کے جو لوگ مکین ہیں نا، وہ دور دراز جاتے ہیں پانی کے لیے، حالانکہ یہ بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ صاف پانی کے لیے لوگ پیتے ہیں، تندرست رہتے ہیں۔ تو جو گھر والا پانی وہ ایسے ہی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تو یہ بند پڑے، کافی عرصے سے بیکار پڑے۔ اچھا، آپ دوسرے علاقہ مکین موجود ہے بابا جی، انتظامیہ کو کبھی دیکھا یہاں کام کرتے؟ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، 1 سال سے 1.5 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ کوئی اس کا ایک دفعہ آئے تھے، پھر دیکھ داکھ کے چلے گئے، وہ دوبارہ آئے نہیں، 1 سال ہو گیا پورا۔ اب یہ ہے فقیر فقرا یہاں بیٹھ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ پانی والا حساب کتاب تو ختم ہو گیا، فلٹر کا بورڈ بھی بیٹھ گیا ہے اور ادھر سے بھی موٹر بھی چوری ہوگی، کوئی لاپرواہی ہو رہی ہے، کوئی گورنمنٹ کے کھاتے کا کوئی بندہ نہیں آ رہا۔ پانی بڑی دور سے بھر کے لے کے آتے ہیں ہم لوگ، ہم بڑی پریشانی ہے وہاں، یعنی کہ یہاں جتنے بھی محلے والے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کرے یہ آپ کی مہربانی سے یعنی کہ یہ فلٹر چالو کروا دیں۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ پنجاب بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو چالو کیا جائے، لیکن ابھی ملتان شہر کی بات کریں تو فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ بدستور بند پڑے ہیں اور علاقہ مکین کو پریشانی کا سامنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد فلٹریشن پلانٹس بند پڑے ہیں۔ شکیل سلطان ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مظفر گڑھ کے گنجان آباد علاقوں میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا۔ شہر کے لیے کوئی صاف پانی کی اسکیم شروع نہیں کی جا سکی۔ شہری پیٹ اور معدے کے مرض میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے شہر میں 8 پلانٹس کے فلٹر بر وقت تبدیل نہیں ہوتے۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں 2010 کے سیلاب کے بعد سے اب تک تقریباً 13 سال گزر چکے ہیں اور زیر زمین پانی جو ہے وہ انتہائی خراب ہے اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعداد بھی کم ہونے کی وجہ سے شہری پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ پینے کا صاف پانی اگر میسر نہ ہو تو مختلف بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور شہری ہیپاٹائٹس کے مرض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ انہی سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، کیا صورتحال ہے شہر میں واٹر پلانٹس کی؟ السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں جب مظفر گڑھ ضلع میں سیلاب آیا تھا تو زیر زمین پانی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور جس وجہ سے نا یہاں کے واٹر پلانٹ سسٹم بنائے گئے تاکہ پانی لوگوں کو صحت یاب میسر ہو، لیکن آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پانی کا پریشر بہت کم ہے۔ اکثر اوقات اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے، لیکن واحد مظفر گڑھ میں جو اب تک میرے نظریے کے مطابق ہے یہی واٹر پلانٹ اچھا جا رہا ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائے گا کہ فلٹر وقت پہ تبدیل نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے کیا مسئلے مسائل؟ بعض اوقات تو عوام کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے بائی نوٹس بورڈ لگا کے کہ فلٹر ہر 2-3 ماہ بعد چینج ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ بالکل الگ ہے کیونکہ فلٹر 6 مہینے 8 مہینے اکثر ہو جاتے ہیں چینج ہوتے ہیں اور اکثر اوقات اس کا نا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ واحد یہ واٹر پلانٹ ہے جو اب تک صحیح چل رہا ہے، مظفر گڑھ میں نہ ہونے کے برابر واٹر پلانٹ ہے۔ اکثریت تو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر کے باہر ٹوٹیاں وغیرہ لگا کے واٹر پلانٹ سسٹم صحیح کر دیا، لیکن اب تک کوئی صحت یاب۔ جی بالکل، واٹر پلانٹس کی تعداد بھی کم ہے اور شہری اپنی مدد آپ کے تحت پینے کا صاف پانی یوز کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ واٹر پلانٹس کی تعداد بڑھائی جائے اور جو واٹر پلانٹس شہر میں موجود ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعداد بڑھائی جائے۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سخی سرور کے باسی صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے بنائے جانے والے 3 فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں۔ شہری 40 سالہ پرانی بوسیدہ پائپ لائن سے گندا پانی پینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے۔ جی بالکل، سخی سرور شہر کی آبادی کو پینے کی صاف پانی کے فراہمی کے لیے بزدار دور حکومت میں 3 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں سخی سرور شہر کے مختلف مقامات پر جو تھے وہ بنائے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ کہ عرصہ دراز سے یہ جو فلٹریشن پلانٹس ہیں چالو نہ ہو سکے، شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہے اور مختلف موذی امراض میں مبتلا ہیں، کیونکہ جتنی بھی شہر بھر میں پانی سپلائی ہوتا ہے وہ 40 سالہ بوسیدہ پائپ لائن سے ہوتا ہے، جس سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، کبھی یہ فلٹریشن پلانٹ چلے ہیں؟
चंद दिन के लिए, चंद दिन के लिए। क्या परेशानी है? परेशानी ना इसे कोई संभालने वाला है ना कोई देखने वाला है, बस हुकूमत के पैसे हैं लगाते हैं और चले जाते हैं जान छुट्टी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उनकी सोलर प्लेटें सारा जो है वो बुसीदा हो चुका है, इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और लोग भी मौजूद हैं। क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, लोगों को जो साफ़ पानी का मसला है उसके लिए ये बनाए गए थे फिल्ट्रेशन प्लांट, लेकिन ये जब से बने हैं उस दिन से ये चालू ही नहीं हुए, लेकिन ये बंद पड़े रहने से ये खटारा बन गए हैं। इनकी जो मशीनरी है उठा ली गई, इनकी जो टूटियाँ हैं वो भी चोर लेकर गए हैं, लेकिन एक दिन भी लोग यहाँ से पानी नहीं पी सके। तो ये सूरत हाल है कि खंडर बन चुका है फिल्ट्रेशन प्लांट, बड़ी मिकदार में ये पैसे लगाए गए थे कि अब ये सूरत हाल है कि सारी चीज़ें जो है खस्ता हाली का शिकार हो चुकी, कोई पूछने वाला नहीं है कि सखी सरवर शहर में ये सूरत हाल है। और साथ ही ये पानी लोग जो हैं वो पीते हैं जो इन वाल से गुजर कर जाता है, मगर यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया है। फॉर्मेलिटी के लिए इनका इफ्तिताह किया गया था, उसके बाद कोई नोटिस नहीं लिया गया। अली मुसर्रर साहब बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मैपको इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक, मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मैपको की टीमों ने एक रोज में 43 सार्फिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। 48,756 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 16,40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान सर्कल में 2 बिजली चोरों को 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी खान सर्कल में 17 बिजली चोरों को 2,37,687 रुपए जुर्माना किया गया। विहाड़ी सर्कल में 2 सार्फिन को 87,540 रुपए जुर्माना आयद हुआ। बहावलपुर सर्कल में 2 बिजली चोरों को 1,38,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रहीम यार खान सर्कल में 7 बिजली चोरों को 3,89,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मैपको इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक, मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मैपको की टीमों ने एक रोज में 43 सार्फिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया है। 48,756 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 16,40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान सर्कल में 2 बिजली चोरों को 70,000 रुपए जुर्माना किया गया। डीजी खान सर्कल में 17 बिजली चोरों को 2,37,687 रुपए जुर्माना किया गया। अब आपको बताएं, मुल्तान में वकालत के शोबे में आए वकला को मसाइल का सामना। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला के शोबे में नौजवान वकला परेशान। वकला का कहना है इब्तदाई सालों में नौजवान वकला को फाइनेंशियल मसाइल का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान वकला भी मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि जब वो अपने करियर का आगाज़ करते हैं वकालत के शोबे में तो किन किन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ अभी भी जो ज़िला कचहरी में नौजवान वकला के मसाइल हैं वो क्या कहें। आप बताइएगा कि एज अ यंग लॉयर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आप करियर को स्टार्ट करते हैं? इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जब नौजवान वकला कचहरी में आते हैं तो उनको अखराजात का सामना करना पड़ता है। कचहरी रोज़ आना जाना है, पेट्रोल की महंगाई है, उसके अलावा यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, तो वो सीनियर वकला को चाहिए भी उनको थोड़ा बहुत पैकेज पे करें उससे, ताकि वो अकोमोडेट हो जाएं और वो अपने आप को बेहतर तरीके से चला सके। अदरवाइज़ तो उनका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके। एक जो क्लर्क होता है वो तो रोज़ दिहाड़ी लगा के चला जाता है, जबकि जो जूनियर वकला होते हैं वो बेचारे खुद से बोल भी नहीं सकते, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, एक और नौजवान वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, जब आपने वकालत के शोबे में आए और यहाँ कचहरी में आप जिस तरह से आ गए तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हमें अखराजात के हवाले से मसाइल हैं पड़े काफ़ी, लेकिन हमारे सीनियर्स को चाहिए कि हमारी थोड़ी हेल्प किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मदद का हेल्प करनी चाहिए उन्हें हमारी, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल के अखराजात हो गए, बाकी घर के थोड़े मामलात हो गए, जिसकी वजह से हमारे बेहतर हो सके। नौजवान वकला का कहना था जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो पाते। जी बहुत शुक्रिया अब्बास। अब आपको बताएं, महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में दुगना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतें बढ़ने से आम आदमी परेशान। मजीद जानते जहानिया से अपने नुमाइंदे अबजद हुसैन बुट्टर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जहां अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में इजाफा होने से जो ख़रीदारी का जो अमल है
वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। जो दुकानदार हैं वो फारग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर जी, ये इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो फ्रिज 30,000 का था ना, अब 90,000 का है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मैंने 5-6 मुलाजिम भी फारिग कर दिए हैं। बेसिकली हमारा किस्तों का काम है, किस्तों का गाहक जब आता है रेट लेते हैं तो वो भी चला जाता है। हम बहुत परेशान हैं और जहेज वाले लोग जो आते हैं ना, वो भी रेट लेते हैं और बिल्कुल मायूस होकर वापस चले जाते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो टैक्स वगैरह कम कर दे और ये महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हम नुकसान में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं और इस हुकूमत को चाहिए कि ये आवाम पे रहम करे और इसकी वजह से जो है ना बेहतरी आएगी। और गरीब बड़ा परेशान है, हम भी परेशान हैं। दरमियाना तबका कोई चीज़ खरीदने वाला भी नहीं है। हम सारा दिन फारिग बैठ के चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया में 2 गुना इजाफा हो चुका है, जिससे जो शहरी है वो ख़रीदार है वो काफ़ी परेशान है। और जो बच्चों के जहेज खरीदने के लिए लोग आते हैं वो भी खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि हुकूमत फौरी तौर लौट जाते हैं। अमजद हुसैन बुचर, बहुत शुक्रिया। मियावाली में बिजली की लटकते तारें शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बनने लगी। मोहल्ला मस्जिद मुहाजरीन गली नंबर 7 के मकीन बिजली की लटकते तारों से परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है इस मसले को फौरी हल किया जाए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, मियावाली मस्जिद मुहाजरीन गली नंबर 7 जो है, यहाँ पे तारें जो लटकी हुई हैं वो यहाँ के मकीनों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं, बल्कि खतरे की अलामत घंटी बन चुकी हैं। किसी वक्त भी इन तारों की वजह से कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ सकता है। इस गली के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जनाब अंकल, ये बहुत सारी तारें लटकी हुई हैं। सर जी, महकमे की बेहिसी है, बार बार रिपोर्ट भी की गई है, इतला भी दी गई है, इससे पहले भी वीडियो बना के दी है उनको। भाई किसी बारिश के मौसम में कोई नाखुशगवार वाक़या, क्या महकमा इंतज़ार कर रहा है कि नाखुशगवार वाक़या हो तो इन तारों को देखा जाए। टेलीफोन बिजली की तारें मिक्स हैं, कनेक्शन घरों से काट दिए गए हैं, खंबे से है तो उसमें करंट मौजूद है। हमारे लिए मसाइल है, गुजरते हुए बच्चे हैं, कोई चिंची गुजरे तो छत लगने का खतरा है, इतनी ज़्यादा झुकी हुई हैं। तो अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि फिलफौर तवज्जो दी जाए और इनकी जो सार्टिंग वो कहते हैं महकमे वाले, इनकी सार्टिंग की जाए और तारें कलेक्ट की जाएंगे। जी, तारों को सुलझाया जाए। कुछ मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है इन तारों की वजह से? सर मकसद है कि एक पॉइंट में हमें 15 मिनट लगते हैं, तो अभी इधर एक पॉइंट में हमें जो है ना जी 1 घंटा लग जाता है। कहीं तारों के जोड़ हैं, कहीं जो है ना जी पौड़ी नहीं लगती है, बहुत सारे मसाइल हैं जी। तो फिर यही मसला है कि चिंचियों की छतें लोडरों की लगती हैं, ये जोड़ हैं खुले हुए, तो इनसे बेहतर है कि आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मिनटों का काम जो है इन तारों की वजह से, ये जो मजदूर हैं कह रहे हैं घंटों में हो रहा है। यहाँ से अगर कोई ऊंची गाड़ी गुजरती है जिसमें मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा है या दीगर कुछ चीज़ें गुजरती हैं तो उससे भी तारें टकरा सकती हैं। यहाँ पे बारछी एजाम में बताया गया है कि दीवारों में करंट आ जाता है और उसके अलावा इस गली में बच्चे भी रहते हैं, मकीन भी रहते हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खानपुर में शहर और गली मोहल्लों में गंदगी फैलाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दुकानदार, होटल मालकान और शहरियों को इंतजामिया की तरफ से वार्निंग। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खालिद महमूद बब्बर कहते हैं शहरी अपने घर का कचरा मखसूस कचरा पॉइंट पर रखें। म्युनिसिपल कमेटी का अमला मखसूस पॉइंट से कचरा उठाएगा। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जनाब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के हुक्म पर हमने शहर भर में मुनादी करा दी है कि कोई दुकानदार, कोई होटल वाला, कोई सब्जी वाला या कोई घर वाला अपना कूड़ा क्रिकेट या कचरा रोड पे या गली में फेंकेगा तो हम उसको जुर्माना करेंगे। वो अपने छापर में डाल कर अपनी दुकान के बाहर या घर के बाहर या होटल के बाहर रख लेंगे। हमारे अमला सैनिटेशन जाके वहाँ से उठा लेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर हम जुर्माना करेंगे। अगर कोई बंदा 3 दफा ही बार बार ये खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ हम FIR दर्ज। अब आपको बताएं, मुल्तान मैपको इंतजामिया ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। चीफ इंजीनियर TNG मैपको को चीफ स्ट्रेटेजिक प्लानर की इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई।
एससी ऑपरेशन मैपको बहावलगर सर्कल मलिक मोहम्मद यूसुफ, एससी ऑपरेशन मैपको रहीम यार खान तैनात। डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल मुजफ्फरगढ़ सर्कल खुर्शीद अहमद, एससी ऑपरेशन मैपको बहावलगर सर्कल तैनात। मोहम्मद अफजल जोया को डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल मैपको रहीम यार खान सर्कल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शाहनवाज खान को एक्सियन कंस्ट्रक्शन मैपको रहीम यार खान डिवीजन तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे मैपको इंतजामिया ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। चीफ इंजीनियर TNJ मैपको को चीफ स्ट्रेटेजिक प्लानर की इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। एससी ऑपरेशन मैपको बहावलगर सर्कल मलिक मोहम्मद यूसुफ, एससी ऑपरेशन मैपको रहीम यार खान तैनात कर दिए गए। डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल मुजफ्फरगढ़ सर्कल खुर्शीद अहमद, एससी ऑपरेशन मैपको बहावलगर सर्कल तैनात कर दिए गए। चेयरमैन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। जामिया इस्लामिया के तारीखी अब्बासिया कैंपस का मुआयना किया। चेयरमैन HEC का बगदाद जदीद कैंपस में सोलर पार्क का दौरा। यूनिवर्सिटी के डीन्स, डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर्स के इजलास की सदारत की। अफरादी कुव्वत के जरिए वतन अजीज को आलमी सतह पर बुलंद मकाम दिलाया जा सकता है। सफाई निस्फ ईमान। हायर एजुकेशन ने जनूबी पंजाब के तमाम कॉलेजेस में हाइजीन क्लब कायम कर दिया। हाइजीन क्लब में तलबा सफाई के मामलात को बेहतर करेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। इसी को मलूज़ खातिर रखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन कदम जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि हाइजीन क्लब जो है वो जनूबी पंजाब भर के तमाम कॉलेजेस जो में बना दिए गए हैं। ये हाइजीन क्लब क्या हैं, ये किस तरह से काम करेंगे और इनसे कॉलेजेस या जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा होगा, इस पर बात करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो हैं वो तारिक आवान हमारे हमरा मौजूद हैं। तारिक भाई, क्या कहेंगे, ये जो हाइजीन क्लब जो हैं वो क्या हैं और किस तरीके से ये काम करेंगे? जी वसीम साहब, ऐसे हैं कि ये हाइजीन क्लब्स हमने बनाए हैं ताकि ये कोई एक यूँ समझें कि सुपरफिशियल कोई चीज़ नहीं है। ये कॉलेज की जो इंतज़ामिया है या प्रिंसिपल्स हैं उनकी मुआवनत के लिए बनाए गए हैं। और ये कॉलेज के जो ऑलरेडी रिसोर्सेज कॉलेज में पहले भी अवेलेबल हैं, जैसे कोई सफाई करने के लिए कोई जेनिटोरियल स्टाफ है या बाकी लोग हैं, तो ये उनकी जो खिदमात हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, बाकी सफाई के मामलात को सुपरवाइज़ करेंगे। उसके साथ साथ इससे ना सिर्फ ये कि वो कोशिश करेंगे कॉलेज का माहौल साफ़ रहे, बल्कि इसका एक मकसद ये भी है कि तलबा अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि उनसे हम कोई जिस्मानी मुशक्क़त का काम लेंगे या उन्होंने खुद जो है वो अपने जिस्मानी मुशक्क़त शुरू कर देनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कॉलेज के जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना है। कॉलेज के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनको उन्होंने सुपरवाइज़ करना है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेजेस हैं उनमें ना सिर्फ तालीम का एहतमाम किया जाए बल्कि तलबा की तरबियत का भी एहतमाम किया जाए, ताकि वो अमली ज़िंदगी में एक बेहतर और मुफीद शहरी के तौर पर कदम रख सकें। अमली ज़िंदगी में बेहतर और मुफीद शहरी के तौर पर जो है वो कदम रख सकें। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तारिक आवान इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि हाइजीन जी वसीम शहजाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको समेत दीगर मैपको अफसरान की शिरकत। महकमाना अकाउंट्स कमेटी के इजलास में 2002 ता 2010 की ज़ेर-ए-अल्तवा ऑडिट पैराज ज़ेर गौर आए। CEO मैपको की 2007 सा 2008 के 2 ऑडिट पैराज से मुतल्लिक ब्रीफिंग की गई। मैपको चीफ का कहना है कि मैपको में मज़कूरा मुद्दत के मज़ीद ऑडिट पैराज नहीं हैं। मैपको इंतजाम में निशानदही करदा ऑडिट पैराज फौरी तौर पर हल कर रही है। अब आपको बताएं, खानेवाल रवां साल कपास की बेहतर पैदावारी का साल करार। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत कपास की बेहतर पैदावारी के लिए सरगर्म। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नदीम मुगल। गुज़िश्ता कई सालों से कपास की फसल की पैदावारी कम है, लेकिन इस साल महकमा ज़राअत की जानिब से अमली इक़दाम किए जा रहे हैं कि कपास की बेहतर से बेहतर फसल कैसे ली जा सकती है। इस पर अमली इक़दाम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे से मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ज़राअत पंजाब असमत साहब। उनसे जानेंगे इस हवाले से। बताइएगा कि सर, कपास की बेहतर पैदावार के लिए काम किया जा रहा है, तो क्या पैगाम देंगे काश्तकारों? इस साल को कपास की बहाली का साल करार दिया गया है। इस साल कपास की बुआई से कबल ही 8500 रुपया फी मन फुट्टी का रेट भी मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके लिए TCP को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा हुकूमत पंजाब 6 लाख एकड़ के लिए
1000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से बीज पे सब्सिडी दे रही है 12 बेहतरीन अकसाम पर। इसके अलावा जितने भी कॉटन एरियाज़ हैं वहाँ नहरी पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन प्लाट्स लगाए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तहसील लेवल पर सहूलत मराकज़ कायम कर दिए गए हैं जहाँ पर हमारा फील्ड अमला या माहरीन जो है हम वक्त मौजूद होंगे, काश्तकारों की रहनुमाई करेंगे। और इसके अलावा काश्तकारों को बताया जा रहा है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास की काश्त करें क्योंकि ये बड़ी प्रॉफिटेबल हो गई है। और कपास की फसल जो है इसका जो टारगेट मुकर्रर किया गया है पंजाब में वो 50 लाख एकड़ है और जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है वो 3,60,000 एकड़ के करीब है, जो हमने हर हालत में हासिल करना है। और पैदावारी हदफ जो पंजाब का है वो 82,26,000 गांठ है, जो हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी कर दी गई हैं। और मार्केटों में ज़री मदाखल जो हैं वो म्यारी जो है वो काश्तकारों को मुहैया करने के लिए वो जो फील्ड फार्मेशन है मुतलका उन्हें हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत की जानिब से जारी कर दी गई है। नदीम मुगल बहुत शुक्रिया। राजनपुर में वज़ीर आला पंजाब की मुआशी बहाली पॉलिसी की रोशनी में महकमा ज़राअत मुतहरिक मकामी होटल में ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के हवाले से ग्रैंड सेमिनार किया गया। मजीद बताएंगे खुरम शहजाद भुट्टा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की माशी बहाली की रोशनी की पॉलिसी के तहत जो है आज राजनपुर के अंदर महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक ग्रैंड सेरेमनी का एहतमाम किया गया है, जहां पर सैकड़ों किसानों ने शिरकत की है। इन किसानों को क्या पैगाम दिया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगा सकें? मौजूद हमारे साथ ADCG सिफातुल्लाह साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, किसानों के किस तरह से रिस्पॉन्स देखा है? जी माशाल्लाह, किसानों को रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है। पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि इस साल जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए एक अच्छा पैकेज दिया है रिगार्डिंग के वो अपना जो कॉटन उगाएं। उसके अंदर उनकी सपोर्ट प्राइस का अनाउंस किया गया है। उसके अंदर उनको पेस्टिसाइड के अंदर, सीड्स के अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर एक सब्सिडाइज रेट पे और सर्टिफाइड कंपनी के दस्तियाब होंगे। और प्लस ये है कि पानी की फराहमी के हवाले से और दीगर जो इक़दाम हैं वो चाहे मतलब उनके टेक्निकल और कपास के एक्सपर्ट माहिरीन की रहनुमाई है वो उनको फराहम की जाएगी ताकि वो अपनी कपास को अच्छे अंदाज से और ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। और स्पोर्ट प्राइस जो बेसिकली हमारा ये है कि हमारे कॉटन रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो डिवेल्प हो और जो कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्री की चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो ना मंगवाएं, हम खुद कफील हों, हमारा ज़र मुबादला की बचत हो। बिल्कुल, ज़र मुबादला की बचत हो। डिप्टी डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे मुबादला की बचत हो। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद। मुल्तान में महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब का अहसन इक़दाम। सेक्रेटरी ज़राअत का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कपास के ट्रायल्स का जायजा लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, कॉटन सीज़न का आगाज़ हो चुका है और एक तरफ जहां वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से इस बार जो कॉटन की रिवाइवल का साल है वो कहा यह जा रहा है। अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़ायद जो बेल टारगेट मुकर्रर किया पंजाब में, अगर बात करें तो 82 लाख बेल, जबकि अगर रकबे की बात की तो 50 लाख एकड़ के करीब जो काश्त है वो की जाएगी। तो हम इस तमाम सूरत हाल में जो सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब वो भी खासा सरगर्म है। तो आज सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली लतीफ़ ने फील्ड विजिट की है, जो की ट्रायल्स लिया गया है, उनको विजिट तफसीलात जानते हैं उनसे कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इस साल एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हो और जब से दूसरा जो मरहला पिछले साल जो बड़ा एक क्लाइमेट चेंज का इशू रहा उस चैलेंज से निपटने के लिए और तमाम सूरत से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए, तो जानते तफसीलात सर बताइएगा क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस बार, क्या प्लान लेकर फील्ड में उतरेंगे? हम सब फील्ड में हैं और जो भी इसका भरपूर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा हम ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे प्लांट क्लिनिक बनाए हैं, हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि बीज की अवेलेबिलिटी हो। और हमारा जो फील्ड स्टाफ था, आपको पता है ट्रेडिशनली ये मुख्तलिफ कामों में लगा रहता है, कभी वो प्राइस चेकिंग कर रहा है, कभी डेंगी। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ये सिर्फ कॉटन पे काम करेंगे। तो ये इससे हम ये समझते हैं कि हर वो फील्ड जिसमें हमारा ऑफिसर जाएगा उसमें एक उसके कदम रखने से उसमें फर्टिलाइज़र जैसा इम्पैक्ट आता है, उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है कोई देखेगा, कोई मशवरा देगा, कोई पेस्ट का मसला होगा। तो ये अभी हमारे पास यहाँ तक 3 बड़े मसले सीड का है, क्लाइमेट का है और मैनेजमेंट का है। क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ़ौरन हम कुछ नहीं कर सकते, सीड भी फौरी तौर पे इतना आसान नहीं, लेकिन वाट एवर अवेलेबल। आपको पता है हमारे पंजाब में 40% लगती है SS 32, वो भी अप्रूव हो गई है, तो वो 40% पहले सीड लोगों के पास मौजूद है। सेक्रेटरी साहब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सूबा पंजाब और जनूबी पंजाब में जो उनका हदफ है वो मुकर्रर किया जाएगा और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर जो 3 अहम चैलेंजेस हैं हदफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। रियाज बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। रहीम यार खान में सेक्रेटरी सेहत अफजल नासिर का शेख ज़ैद हस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी सेहत ने शेख ज़ैद हस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है।
मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, सेक्रेटरी जनूबी पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अफसर नासिर ने शेख ज़ायद हॉस्पिटल का दौरा किया। सेक्रेटरी साहब, बड़ा अहम दौरा है, पहले भी आपने दौरा किया, तो क्या आपने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं, कौन से ऐसे फैसले किए हैं जो हेल्थ की सूरत हाल के हवाले से बेहतर हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। आज मैं कार्डियोलॉजी जो हमारा सेंटर है, कार्डिक सेंटर बन रहा है यूएई के कोऑपरेशन से, बेसिकली उसको मैंने आज ऑब्जर्व किया है, देखा है और उसमें ब्रीफिंग भी ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा एक मॉडल प्रोजेक्ट है जो टोटली स्पॉन्सर्ड बाय द यूएई है, और उसमें बहुत सी ऐसी नॉवल चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अभी तक पाकिस्तान में भी नहीं हैं। तो ये टोटली 3.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और इट वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 22 and it's going to be completed on 1st of August 2023। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को यहाँ के एक बहुत बड़ा हेल्थ कवर देगा, और इसका जो लोड बहावलपुर या मुल्तान तक जाता है वो इसी लेवल पे कवर हो जाएगा। सेकेंडली, हमारा ईडैप का एक प्रोजेक्ट है सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, उसमें उनकी कोई रिवाइज होना था एस्टिमेट, जिसकी वजह से वो लेट हुआ है। इसमें वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लाहौर से भी इसका नोटिस ले चुके हैं, और सीओ जो है आई टैब उनके भी नोटिस में है। थर्डली, यहाँ के कुछ इश्यूज थे जो डिस्कस हुए हैं और पहले भी हुए थे, लेकिन आज उसको एक रिकमेंडेशंस की शक्ल में लाहौर भेजा जा रहा है। उसमें एक तो एक्सेसन सिलेंडर का इनका कुछ अमाउंट है, जिसकी वजह से बहुत सी पेमेंट और इनकी सैलरीज नर्सेज वगैरह की रुकी पड़ी हैं। सेकेंडली, इनका कोई 88 लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में गए थे, और वो उनकी रिक्रूटमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन वो इशू भी डिस्कस हो गया है, और उनकरीब इंशाल्लाह उन्हें छुट्टी दी है कि वो हल हो जाएगा। तमाम इश्यूज डिस्कस हो गए हैं। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। स्पेशल बच्चे भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये भी किसी से कम नहीं। मुल्तान में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम तलबा हुनर सीखने के लिए पुराज़्म। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं लिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, कुव्वत समात और गोयाई से महरूम तालबात के स्कूल में बाकायदा उनको एक ड्राइंग की क्लास दी जाती है, जिसमें बच्चियों को पेंटिंग करना, ड्राइंग करना सिखाया जाता है। मैं जिस रूम में मौजूद हूँ, यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स हैं इन बच्चियों ने बनाई है, और यहाँ की जो टीचर हैं वो भी कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। पिछले 16 साल से इन बच्चियों को ये खूबसूरत आर्ट सिखा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त साजिदा परवीन मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात भी जान लेते हैं। मेरा नाम साजिदा परवीन है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैंने ड्राइंग सिखाई है बच्चों को। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, अपने अपने घरों में काम करते हैं। और मैंने नैब में भी बच्चों को अव्वल पोजीशन हासिल की है। बच्चों ने मेरी ड्राइंग करने का नैब में जो पार्टिसिपेट किया उसमें सब पास हुए और फर्स्ट आए, अव्वल पोजीशन हासिल की है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो कितनी नफासत से ये जो ड्राइंग कर रही हैं और उसके अंदर कलर्स कर रही हैं, इनको बाकायदा सिखाया जाता है। बच्चे नफासत से ड्राइंग कर रहे हैं। अलिशमा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।